Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to start second part of the chapter Election and Representation. In the last class you all are aware that we have done basically something, or you can say introductory part of the chapter, in which we have discussed some type of question. We have discussed direct democracy, representative democracy. Along with that we have discussed that there should be some questions in your mind, है ना? We have discussed that if election is the identification of a democracy, and all those countries which are having elections all are democratic. We were discussing these things, and by giving the incident, by giving the provisions of the constitution, we have discussed some questions also, that which authorities, which provisions are mentioned in any country's constitution regarding elections. So today we will move further. So let us start today. Like most democratic countries, like most democratic constitutions, the Constitution of India answers all these questions. कौन से वाले questions? ये वाले question कि vote कौन कर सकता है? Who is eligible to contest? Who will supervise the elections? Right? How the voters will choose their representatives? And how are the votes to be counted and representatives elected? So all these questions are answered in the constitution of our country, like the constitution of any other democratic country. As you can see, the first three questions are about ensuring that elections are free and fair and can thus be called democratic. जो स्टार्टिंग वाले तीन आपने फैक्टर्स पढ़े, ये वाले तीन फैक्टर्स कि वोट कौन करेगा, वोट इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए कौन एलिजिबल है, और इलेक्शंस को सुपरवाइज कौन करेगा. All these three questions, what they are telling us, they are ensuring that election should be free and fair and can thus be called democratic. और इसीलिए क्या होंगे, इसी वजह से हमारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कहलाते हैं. The last two questions about ensuring a fair representation, and the last 2 points are discussing, or they are telling us about representation or completely fair representation. In this chapter, you will consider both these aspects of the constitutional provisions about election. तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली वो सारी चीजें डिस्कस करनी है जो क्वेश्चन की फॉर्म में आपने ऊपर स्टडी किए. Got it? So this is activity basically, and what they are saying to you, collect some newspaper clipping about elections in India and any other country and classify. What you will have to classify system of representation, कि कौन सा सिस्टम वहां पे यूज हो रहा है. अभी सिस्टम हम रीड करेंगे आगे. वोटर्स एलिजिबिलिटी, कि वोट के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है वहां पे. रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, अभी आपने पढ़ा ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु विल सुपरवाइज द इलेक्शन. तो हर एक कंट्री में बेसिकली क्या होता है, इलेक्शन कमीशन होता है. राइट. सो आपको कुछ वेबसाइट्स भी दी गई है, यू कैन ऑल्सो चेक दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स. So now we are going to study election system in India, that which kind of electoral system, election system we are using in India. You may have noted above a reference to different methods or the system of elections. आपने देखा होगा, आपने नोट किया होगा, different methods होते हैं elections के रिगार्डिंग. You may have wonder what these were all about. और आपके दिमाग में कभी ये भी आया होगा कि सारी किस चीज के बारे में बात हो रही है. You may have seen or read about different methods of electioneering and campaigning in the elections. आपने different मेथड रीड किए होंगे कि इलेक्शंस के डिफरेंट मेथड क्या हैं. कैंपेनिंग के मतलब खुद को प्रमोट करने के, वो मेथड इलेक्शंस में कौन कौन से हैं. बट व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन? दिस इज अ सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस. अब जो आपको स्टडी करना है वो क्या स्टडी करना है कि जो इलेक्शंस आप इतनी देर से हम बोल रहे हैं, इलेक्शंस ये वो ये सारी चीजें, कौन वोट करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, बट एक्चुअल में वो मेथड्स इलेक्शन के होते कौन कौन से हैं जिसके बिहाफ पे आप ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फाइनलाइज करने वाले हो. सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन. देयर आर अथॉरिटीज एंड रूल्स अबाउट डू एंड डू नॉट्स. क्या होता है कंट्री में? अथॉरिटी होती है किसके रिगार्डिंग? रूल्स के रिगार्डिंग और सारी चीजों के रिगार्डिंग कि क्या कर सकते हो, व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट कैन नॉट बी डन. ओके, सो इज दैट व्हाट इलेक्शन सिस्टम इज ऑल अबाउट? क्या इलेक्शन सिस्टम सिर्फ इतना ही होता है? कितना?
कि आपने मेथड बता दिए, आपने बता दिया कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है. सो इज दिस ऑल अबाउट इलेक्शन? You may have wondered why the constitution needs to write down how the votes are to be counted and representative elected. क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन में, आप मतलब हैरानी होनी चाहिए आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी भी चीजें लिखी हुई हैं कि वोट की काउंटिंग कैसे होने वाली है एंड हाउ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू बी इलेक्टेड. isn't that very obvious? क्या कुछ ये चीज बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं दिख रही है आपको? हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो जीतेगा वो विन करेगा. पीपल गो एंड वोट. द कैंडिडेट हु गेट्स हाईएस्ट वोट गेट्स इलेक्टेड. अभी तक आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है? यही चलता है ना हमारे सबके दिमाग में कि जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा. दैट्स इनफ. तो इसमें इतना ज्यादा डिटेलिंग करने की, एक्सप्लेन करने की क्या रिक्वायरमेंट? सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में मेंशन करने की क्या जरूरत है? राइट. सो दैट इज व्हाट all elections are all over the world. Why do we need to think about it? और यही वो चीजें हैं जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं. मतलब इंडिया कोई ऐसी इकलौती कंट्री तो है नहीं कि जिसमें इलेक्शंस हो रहे हैं. वी आर हैविंग लॉट ऑफ द कंट्रीज इन विच वी आर हैविंग इलेक्शंस. लेकिन अब आपको इस पर सोचने की जरूरत है. हमें इस पर सोचने की जरूरत एक्चुअल में है क्यों? कि आपको सारी की सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करनी है. सो वी नीड टू. क्यों जरूरत है? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स टू अस. ये जो क्वेश्चन जो आपने अभी पढ़ा वो इतना सिंपल नहीं है जितना आपके दिमाग में भी चल रहा है. क्या कि लोग वोट कास्ट करने गए, वहां पे वोट कास्ट कर दी, दैट पर्सन हु हैज सिक्योर्ड मोर वोट दैट विल बी द लीडर. है ना? वी आर एबल टू थिंक, वी आर एबल टिल नाउ दैट इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट it's a very complicated thing. It's not that much easy as it appears to us. We have got so used to our system of election that we think that there cannot be any other way. और आपने सिर्फ ये सिस्टम अपनी कंट्री में यही देखा है कि जिस वोट डली, जिसको ज्यादा वोट्स मिल गए वो जीत गया. दैट्स व्हाई जब भी हमें कोई बोलता है इलेक्शन, तो हमारे दिमाग में यही सारी प्रोसेस कहीं ना कहीं ओवरकम कर जाती है. एंड वी आर एबल टू थिंक कि सिर्फ इतना ही होता है ना? आपने वो छोटी सी चिड़िया वाली पोएम सुनी होगी कि पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार. तो मतलब आपने क्या देखा है कि आपने ये चेक किया कि हमारी कंट्री में तो ये फॉलो हो रहा है, इसलिए हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि इलेक्शंस का मतलब यही है कि आप वोट डालोगे, जिसको ज्यादा वोट्स मिले वो पर्सन हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव और लीडर. राइट. वी आर नॉट एबल टू थिंक दैट देयर कैन बी एनी अदर वे ऑल्सो. In a democratic elections, people vote and their preferences decides who will win the elections. But there can be very different ways. अब देखो क्या होगा, अलग अलग कंट्री की डिमांड्स के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शन इन एनी कंट्री. ओके. एंड there can be different ways in which the people make their choices and very different ways in which their preferences can be counted. और उन लोगों की प्रेफरेंस को काउंट करने के भी अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं. These different rules of the game can make a difference to who the winner of the game will be. और यही आपके जो गेम्स के रूल, जैसे आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि क्या होगा कि आपने गेम्स के रूल अगर चेंज किए, सो देयर विल बी कंप्लीटली चेंज इन द रिजल्ट ऑफ द गेम्स. तो सेम थिंग यहां पर भी है कि अगर आप इलेक्शंस में आपने सोच लिया ना कि जो जिसको ज्यादा वोट्स मिले वही लीडर बनेगा, बट सम कंट्रीज आर यूजिंग अदर मेथड्स ऑल्सो. तो जैसे ही हमारा इलेक्टोरल सिस्टम चेंज हो जाता है, इलेक्शन सिस्टम चेंज हो जाता है, वैसे कौन पर्सन जीतेगा, दिस सिस्टम ऑल्सो चेंज. Right, this system also changes. So after that, some rules can favor biggest parties. कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बिगेस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं. Some rules can help the smaller players. कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो स्मॉलर प्लेयर को भी हेल्प कर सकते हैं, है ना? यू नेवर नो कि लक कब काम कर जाए. Some rules can favor the majority community. जैसे हमारी कंट्री में क्या हो जाता है कि जिसको ज्यादा वोट्स मिल गए वो जीत गया, मतलब ज्यादा लोगों ने उसको फेवर कर दिया. Others can protect the minority. कुछ अपने माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Let us look at the dramatic instance to see how this happened.
अब इसको यही स्टडी करना है कि एक्चुअल में हमने जितनी सारी चीजें बोल दी ये होती कैसे। ओके, अब देखो फर्स्ट है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब देखो ये सिस्टम बोला जाता है FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसमें देखो पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी होती है ना, इसमें वही होता है। इसमें क्या सिस्टम होता है बेसिकली, जिस पर्सन को औरों की कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स मिल गए दैट पर्सन विल बी इलेक्टेड एज द विनर। सपोज देयर आर 4 कैंडिडेट्स and 100 votes are going to be cast. So what will happen? Suppose any single person is able to get 30 votes, okay, and the 70 votes are divided among all those other 3 candidates which are also fighting the elections. But the votes are divided because the votes were 70 and they are divided among 4 members. Okay. सपोज किसी को 20 मिल गए, किसी को 20, दो को 25 मिल गए। सो अब देखो क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा कि अब आपने ये चेक कर लिया कि जिसको ना सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले हैं, दैट पर्सन हु इज हैविंग 30, क्योंकि औरों को किसी को 20 मिल रहे हैं, किसी एक पर्सन को 15 मिल रहे हैं, किसी एक पर्सन को 10 मिल रहे हैं। मतलब व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि दैट पर्सन हु हैज सिक्योर्ड 30 seats, she is having more votes in comparison of others, and because he is able to secure more votes in comparison of others, that's why he will be winner. ये सिस्टम होता है FPTP सिस्टम। आपने जस्ट ये चेक किया कि औरों की कंपैरिजन में पर्सन को ज्यादा वोट्स मिलने चाहिए, दैट्स इनफ फॉर अस। हमने ये चेक नहीं किया, आई टोल्ड यू कि 30 वोट्स आर इन द फेवर ऑफ दैट पर्सन हु हैज वॉन द इलेक्शन, बट हमने ये तो चेक नहीं किया कि जो 4 कैंडिडेट्स थे ऑल दो दे आर 4 बट इवन देन उनके पास 70 लोग हैं, 70 वोट्स हैं, और जिस पर्सन को आपने इलेक्ट कर लिया उस पर्सन के पास सिर्फ 30 वोट्स हैं, 70 तो उसके अगेंस्ट में पड़ी हुई है, राइट। बट दिस सिस्टम सीम्स वेरी इजी, इट इज अंडरस्टैंडेबल, दैट्स व्हाई इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस सिस्टम। ओके, अब देखो लेट अस अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, अब ये वही सारी चीजें आपको मेंशन करके दिखाई गई हैं, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, इट टॉक्स ऑफ वन हिस्टोरिक मूवमेंट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1984। ये 1984 का इलेक्शन था, उसका इंसिडेंट आपको गिवन है। एंड व्हाट इज शोन टू यू, द कांग्रेस केम टू पावर विनिंग 415 आउट ऑफ 543, मतलब 543 में से 415 सीट्स अकेले कांग्रेस ने कंट्रोल कर ली, मोर देन 80% ऑफ द सीट्स। मतलब आप क्या मानोगे कि 80% सीट्स अकेले कांग्रेस के पास, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि कांग्रेस को तो ना भाई बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था। बट लेट अस सी द रियलिटी नाउ, सच अ विक्ट्री वाज नेवर अचीव्ड बाय एनी पार्टी इन द लोकसभा, और 80% सीट्स ऐसी तो किसी ने लोकसभा ने आज तक विक्ट्री गेन ही नहीं की थी। व्हाट डिड दिस इलेक्शन शो, ये क्या शो करता है, the Congress won 45th of the seats. Does it mean that 4 out of 5 Indian voters voted the Congress party? यानी कि आपने अभी क्या पढ़ा, that 415 seats alone Congress was able to win, and it is referring that 4 out of 5, मतलब अगर 5 लोग वोट डालने गए तो 4 ने उनमें से कांग्रेस को ही वोट डाली है। Were they voting Congress only? So actually not. Here is the twist. अब वो ट्विस्ट क्या है, टेक अ लुक एट द इनक्लोज टेबल। अब यहां पे देखो क्या सिस्टम आपको गिवन है, ये रहा सिस्टम। देखो कांग्रेस, इसको वोट सिर्फ कितने मिले हैं, 14% वोट्स मिले हैं, लेकिन सीट्स कितने मिल गई, 450 फॉर 15, राइट। बीजेपी को 7.4 वोट्स मिले, लेकिन सीट्स कितने मिले, सिर्फ 2। ऐसे सेम सिस्टम अदर कंट्रीज के साथ भी है। सो लेट अस डिस्कस हाउ डज इट हैपन। अब देखो ये कैसे हैपन हो रहा था, एक्चुअली नॉट। टेक अ लुक एट द एनक्लोज टेबल, द कांग्रेस पार्टी गॉट 48% ऑफ द वोट्स। कांग्रेस पार्टी को कितनी वोट्स मिली, 48%, लेकिन सीट्स कितनी मिल गई, 80%। This means that only 48% of those who voted in the favor of the candidate put up by the Congress party.
इससे आपका क्या कंक्लूजन निकला कि जितने लोग वोट डालने गए उनमें से सिर्फ 45% लोगों ने, 48% लोगों ने ही कांग्रेस के फेवर में वोट डाला. बट इवन देन द सीट्स विच वर सिक्योर्ड बाय कांग्रेस पार्टी दे वर 80%. But the party still managed to win more than 80% of the seats in the Lok Sabha. But even then, party 80% seats को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल थी. And look at the performance of other parties. The BJP got 7.4% seats votes, but less than 1% seats. अब ये होता कैसे है, राइट? अब देखो यहाँ पर भी the girl is also thinking less than 50% votes and more than 80% seats. Isn't that unfair? How would our constitution make us accept such an unfair system? कि आपको वोट्स तो मिली सिर्फ, मतलब 48 पीपल लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 48% पीपल, बट यू आर कंट्रोलिंग द 80% सीट्स ऑफ द कंट्री. मतलब अगर एमपी होंगे तो एमपी 80% कांग्रेस के ही होंगे और जो चाहेंगे वैसी पॉलिसी फ्रेम हो जाएंगी. ओके, सो नाउ हैपन व्हाई ऑल दीज थिंग हैज हैपेंड. This happened because in our country we follow special method of election. Under this system, क्या होता है सिस्टम के अंदर? अभी आपने स्टडी किया ना, FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट. यही सिस्टम हम लोग यूज करते हैं. अब इसमें बेसिकली सिस्टम होता कैसे है? लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस कंप्लीटली. द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. पूरी की पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है. अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? Basically, constituency is a particular geographical area from where one person is going to be elected, जो उनको represent करेगा. Because we are having representative democracy ना, तो कितने लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, कितने एरिया के पीपल को एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव करेगा. मतलब वो एरिया जहां से एक पर्सन इलेक्ट होके आना है, दैट इज कंसीडर्ड, दैट एरिया इज कंसीडर्ड एज दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसी. Each constituency elects one representative. हमारी कंट्री में क्या सिंगल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आपका इलेक्ट होता है. एंड द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 100 सीट्स वाला, कि अगर एक को 30% वोट्स मिले बट इवन देन वो 30 औरों के कंपैरिजन में ज्यादा थे, तो 30% the person who has got 30% seats, he will be declared winner. Right? It is important to note that in this system, whoever has more votes than all other candidates is declared elected. अब आपको क्या याद रखना है? अब आपको यही याद रखना है that person who is having more votes in comparison of other is considered elected. आपने ये चेक नहीं किया उसके अगेंस्ट में कितनी है, आप जस्ट ये चेक करोगे कि मान लो एक पर्सन को 30 जो सीट्स मिली थी, 30 वोट्स मिली थी, सॉरी सीट्स नहीं 30 वोट्स, और एक पर्सन को अगर हमारे 29 भी मिली तो यू विल से 30 वाला विनर है भाई. ओके, द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ द वोट्स. उसको मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बिकॉज आई टोल्ड यू कि उसको तो सिर्फ 30 वोट्स मिली, 70 वोट्स तो उसके अगेंस्ट है. मेजोरिटी का मतलब क्या है? इट इज 51%, 51 पीपल एटलीस्ट दे शुड बी इन द फेवर ऑफ दैट पर्सन ओनली. बट यहाँ पे क्या होता है, एफपीटीपी सिस्टम में आपको मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इस मेथड को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. इसी को बोलते हैं एफपीटीपी सिस्टम. इन द इलेक्टोरल रेस, द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ अदर्स हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द विनर. यानी आपने ये देखना है कि औरों की कंपैरिजन में वोट्स किसके पास ज्यादा है. दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लूरैलिटी सिस्टम. प्लूरैलिटी क्यों? क्योंकि आपको औरों की कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स देखने थे. दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही मेथड है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. सो लेट अस नाउ गो बैक टू आवर एग्जांपल. कौन सा एग्जांपल? ये वाला एग्जांपल जो आपने स्टडी किया. ओके, सो द कांग्रेस पार्टी won greater shares of seats than its share of votes because of many of the constituencies in which the candidate won, they secured less than 50% of the votes. अब समझ आया आपको रीजन? हमने क्या पढ़ा? कांग्रेस ने 48% वोट्स ही सिक्योर की, बट इवन देन 80% सीट्स को उसने कंट्रोल कर लिया. आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रीजन
क्यों? क्योंकि उसके जो एमपीज थे वो कहीं ना कहीं क्या थे, वो औरों की कंपैरिजन में आगे थे। सपोज बीजेपी का कैंडिडेट भी फाइट कर रहा है, कांग्रेस का भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सबका फाइट कर रहा है। तो औरों के कंपैरिजन में हमने ये देख लिया कि कांग्रेस वालों को ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। हमने ये नहीं देखा कि कांग्रेस वाले को मेजोरिटी मिल रही है, नहीं। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? Because in many of the constituency in which its candidate won, they secured less than 50% of the votes. उनको 50% से कम वोट्स मिली, क्योंकि देखो हमने देख लिया कि वोट तो 50% से भी कम ही मिली हुई है ना? If there are several candidates, the winning candidate often gets much less than 50% of the votes. अगर यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट हो तो क्या हो, द विनिंग कैंडिडेट ऑफन गेट्स मच लेस देन 50% ऑफ द वोट्स। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट हैं तो जो विनिंग कैंडिडेट होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी कम होती है कि उसको 50% से ज्यादा वोट्स, 50% वोट्स मिल जाए। पॉसिबिलिटी क्या होती है कि उसको 50% से लेस ही वोट्स मिलती है। वो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वी आर हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम, और मल्टी पार्टी सिस्टम है तो बहुत सारे कैंडिडेट फाइट करेंगे इलेक्शंस के लिए, और फाइट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, द वोट्स विल बी बाइफरकेटेड, वोट्स का डिवीजन हो जाएगा, राइट? द वोट्स दैट गो टू ऑल द लूजिंग कैंडिडेट्स गो वेस्ट। जो लूज हो गए कैंडिडेट, जो हार गए, उनकी वोट तो वेस्ट हो गई एक टाइप से। हमने क्या माना, मान लिया कांग्रेस को 48% वोट्स मिली, और सारी पार्टीज को मिला के क्या मिल गई, 52% वोट्स मिल गई। बट वो 52% लोग जिन्होंने अदर पार्टीज को फेवर किया, वोट डाली, उनकी तो वोट वेस्ट हो गई ना। एंड वी आर एबल टू सी दैट कांग्रेस वाज एबल टू सिक्योर 80% ऑफ द सीट्स। तो वो पीपल, तो उनकी तो वोट वेस्ट हो गई कंप्लीटली। गॉट इट? सो फॉर दोज कैंडिडेट्स और पार्टीज गेट नो सीट्स फ्रॉम दोज वोट्स, क्योंकि उन लोगों को, मान लिया अगर उनको वोट्स मिली भी तो उसकी कंपेरिजन में उनको सीट्स नहीं मिली, तो उन वोट्स को कोई बेनिफिट ही नहीं हो पाया। Suppose a party gets only 25% of the votes in every constituency, but everyone else get even less votes. अब देखो, मैंने जैसे आपको 30 का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे आपको 25% वोट्स का एग्जाम्पल है कि किसी एक पार्टी को 25% वोट्स ही मिले हैं, और वो वोट्स हो गए बाइफर्केट हो गए, डिवाइड हो गए हैं अमंग ऑल द कैंडिडेट्स। और जो और बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनको 25 से भी लेस वोट्स मिले, 25% से भी लेस। तो अब क्या होगा, अब वही 25% वाला पर्सन विनर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि औरों के पास 25 भी नहीं है भाई, और हमने तो यही देखना है कि सबसे पहले जो विनिंग वाला एरिया था वो किसने क्रॉस कर लिया, राइट? सो बट एवरीवन एल्स गेट्स even less votes. In this case, the party could win all the seats with only 25% votes or even less. अगर ऐसा सिस्टम होता है तो पार्टी तब भी सारी सीट जीत जाती है। Why? क्योंकि और कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं कि जिसके पास 25% वोट्स भी हो, वोट्स डिवाइड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। और जब ऐसा सिस्टम होता है तो वोट के डिवीजन होने की वजह से जिस पार्टी को बहुत कम वोट्स भी मिलते हैं, दे आर ऑल्सो एबल टू गेट अ लॉट ऑफ सीट्स। बट इसका लॉस क्या होता है? देखो 25% पे किसी एक को मेजोरिटी मिल गई, मतलब गवर्नमेंट बनाने की मेजोरिटी मिल गई, यानी कि एमपी सारे उसी पार्टी से ले लिए गए। But we are not looking the point, on which point we are not looking, that is against that person, against that particular party. आपने ये तो देख लिया that 25% seats are in the favor and that is the biggest party, है ना? But we did not see कि इसके अगेंस्ट में भाई 75% सीट्स भी तो हैं, हमने उनको तो चेक ही नहीं किया। This is the problem basically with this particular system. This system is FPTP system, first past the post system. Hope everything is completely clear to all of you and you are able to understand FPTP system होता क्या। And because it's very easy कि जिसको औरों की कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स मिले, आपने उसको विनर डिक्लेयर कर दिया। But some countries which are not agree on this particular point, on this particular system of election, they have introduced new system, that is proportional representation. अब ये proportional representation क्या होता है, that we will discuss in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.